व्हाट इज लिविंग बीइंग आमे कहा के लिविंग बीइंग कहबा देखो वर्तमान जदि तुमको लाइफ ऊपर क्वेश्चन करा जाए व्हाट इज लाइफ इट इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर व्हाट इज लाइफ ऊपर सैटिस्फैक्टरी आंसर आमे सब जगह रे पाएमा तार कोनसी सियोरिटी नै न हला तो ये जो व्हाट इज लाइफ ऊपर मु वर्तमान तुमन को कहूजे हला लाइफ शो करवा लगे हमको लिविंग बीइंग रो एग्जांपल नबा के पड़ला सो इने जदि मैं व्हाट इज ए लिविंग बीइंग कहा गला काल से जगह मु आंसर लिखबी द ऑर्गेनिज्म or the individual I can say both gender भी कोई पारे हला so मु जदि ई जगह रे तक एक्सप्लेन करबी the organism or the individual तुम हेटा एडजस्ट करो so now the organism or the individual showing living activities like growth, development, living beings. देखो मते जदि कहबो कि बुक रू भी रेफर करके जदि लिखवा लगी चाहेबो यू विल गेट दिस द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इंडिविजुअल showing living activities जो ऑर्गेनिज्म बाय इंडिविजुअल ये जो लिविंग एक्टिविटीज गुडा को शो करितबो लाइक ग्रोथ डेवलपमेंट कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड लिविंग बीइंग तो जेन माने ये सब जिंस शो करि पारबे दे आर कॉल्ड लिविंग बीइंग्स किंतु एठी गुडे जिंस ध्यान दियो आर बार सो नाउ सी तो एठी कथा होची जो माने लिविंग बीइंग तांका पाखरे किछि स्पेस मु जो एठी लिखली एठी मात्र ना आउ किछि so more points might be there so last में मुझे अंदर तुमको डिस्कशन करली अबाउट द व्हाट इज लिविंग बीइंग आउ थरे सेटा को कहबी जे मजरे टिके डिस्टरबेंसेस हे गेला so what is a living being the organism or the individual showing living activities like growth development consciousness and reproduction are called living beings in fact या बाहर भी आहुरी अनेक कैरेक्टर्स अछि सेगुडा को वन बाय वन वी हैव टू डील वर्तमान लेट अस सी व्हाट इज ग्रोथ नेक्स्ट फर्स्ट हला हमरा ग्रोथ ये ग्रोथ रे वर्तमान हम डिस्कशन करबा इट इज ए such a character which can be seen in both living and non living हमें फर्स्ट पॉइंट मु एठी पॉइंट वाइज लेखु जी तुम से दिन सब देखो growth is the phenomenon by which living organism can grow by mass and number living organism by mass and number दुई तरह से माने ग्रो करबाटा को हमें ग्रोथ करना नाउ यू सी व्हाट इज growth by mass माने काना इट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ गोटे इमेजिन करो गोटे छोट अंडारू जेतबे गोटे चिक्स होची and that chicks is growing to a hen or cock so it is increasing the cells by number so bhitor photo initially internally due to the increase in cells जेतबे तारो संख्या बढ़ुची माने ओजन वेट बढ़ुची ताकू हमें कहू ग्रो बाय मास सो it can also be written in points the living organism can grow by mass intrinsically अर्थात intrinsically माने internally भीतरू internally it is developing intrinsically by receiving
receiving substances substance गुड़ा को receive करके से ये जो living organism can grow. Just example, suppose a newborn cell যদি নয়া করে গোটে সেল রে সৃষ্টি হয়েছে, suppose its size is like this, so it will definitely grow in size টা তার বড়িব, because it will receive substances from outside substances se receive karibo and it will grow. So this is called growth. When the protoplasmic substance is increased, it is called growth. That means eti mu eti likhi parthandi increase of protoplasm, increase of protoplasm. This is also can be written here. It is the living organism. After a sentence को clear करके, the living organism can grow by mass intrinsically or internally. Living organism internally बढ़ी पारिबो by receiving substances. से substance गुड़ा को receive करिबी कोटा from outside, जो necessary substances गुड़ा कामर अछि ताको receive करके से बढ़ी पारिबो, and this is called growth. Similarly, by cell division, organisms can grow by number. Organism can grow by number due to cell division. You know about mitosis or meiosis. Suppose a cell is here, an adult cell, and it is dividing by mitosis and producing two cells here, new cells. This is our grow by number. So grow by number is actually contributed by cell division. Cell division जदि हबो ताहले जेकि से by number grow करिवो. वर्तमान में ग्रोथ रो कथा देखिबा. Plants, animals, and of course microorganism तीन जन को केस रे देखिबा. What next? So now we are here with growth. आमे growth रो description वर्तमान कंटिन्यू करूछु. So you see growth in plants. So first point like in plants, growth takes place throughout the life. Plant रो तार जीवन काल भितरे all along the life जिते समय से बंचिबो सेति समय तार ग्रोथ करिवो, से बाय नंबर भी आ बाय मास. So it is not a point to be confused. से सब बेले निश्चित ग्रो करिवो. But now you see in animals growth is up to a specific period गोटे निर्दिष्ट समय पर्यंत आमर ग्रोथ होबो. एबे तुम माने जो एज रे अछ, यू आर स्टिल ग्रोइंग, तुमर साइज, लेंथ, हाइट, वेट सब बढ़िबो. सो विल मेक आई ग्रो. मो बढ़ी परबे कि मोर हाइट आउ बढ़ी परबे कि माय एज नेवर परमिट्स टू ग्रो मी. सो आमर जो ह्यूमन ग्रोथ लागि जेते कि पीरियड स्टिपुलेटेड अछि, approximately up to 25 years we are growing properly by bone, muscles till the end ame dar development ke dekhi pariba. But overall growth jota कहबा organism ro, it is stopped in a specific period, गोटे निर्दिष्ट period भितरे से बंद हो जाए. So now you see about the microorganism. In microorganism, do you know what is microorganism? Bacteria, amoeba, those unicellular organisms usually. Hala bracket ro mo likhi dochi unicellular. Usually divide and convert
themselves into their offsprings ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଛୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କର suppose this is amoeba so after having a certain period of growth ये कौन कला divide ହେଇଗଲା divided into two small amoeba and there is nothing left here ये निजे सेल टा ही जेहेतु दुई भाग रे डिवाइड हो जाय जे से तार आउ किछि बाकी रहिला नाही तेनु इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डॉटर सेल्स तेनु निजर सेल रे जो से कन्वर्ट हे जिवो तेनु तार निजर किछि आउ एक्जिस्टेंस रहिला नाही सिटी पे कुआ जाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली इमोर्टल दैट्स ड्यू टू सच प्रॉपर्टी due to this property unicellular organisms capable of binary fission are considered as immortal तेनु ये जो माने बाइनरी फ्यूजन रे कैपेबल दिस इज बाइनरी फ्यूजन अर्थात दुईटी सेल रे कन्वर्ट हवा प्रोसेस को हमें बाइनरी फ्यूजन कहू जो सेल माने बाइनरी फ्यूजन पई कैपेबल यूनिसेलुलर सेमान को हमें अमर बोली कि विचार करतो इमोर्टल रो अर्थ मरंती नहीं से माने मला केते बेले से निजे तार सबु जाक दुई भाग हे गेला सेति पे ताको इमोर्टल माने अमर मरिबो नहीं छी सुन आउटे कथा तमे मते पचारि पारिबो ए सब जिंस जहा लेखिछ ता ऊपर डिस्कशन करिबा मु 9:35 रे आकु मीटिंग लीव करिकि ठीक 9:40 रे 5 मिनट गैप नेबे बिकॉज़ टू सेव द रिकॉर्डिंग्स तापर 9:40 रे अगेन तो मन को मु एडवाइस करिबो टू रिजॉइन आ से रिजॉइन करि सल्ला परे पुनी थरे वी विल continue the same process and the recording will be in the same way so एठी देखो ग्रोथ माने बढ़िबाटा छोटो रु बड़ हबाटा साइज बड़ हबाटा संख्या बेसी हबाटा all are collectively it can be called as growth एठी तो मन को बितरु कार गुडे चिंता ही परे सर सेडिमेंटरी रॉक्स भी तो बढ़ुची सेडिमेंटरी माने स्तरीभूत शिला जोटा नदी समुद्र हृद पाखरे जेतले पटुमाटी जाकी जमे धीरे धीरे ता ऊपर चाप ताप पड़े से गुटे शिला रे कन्वर्ट हुए इट इज कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक सो एटा बढ़े बट तार बढ़िबाटा ग्रोथ ता होती एक्सट्रिंसिक भीतर पटु किछि बढ़िबोनी बाहर ऊपर जमा हे बढ़िबो हाउएवर इट कैन बी सीन दैट दे आर ग्रोइंग तो हमें एही जगह रे देखि परिबा ग्रोथ can also be seen growth can also be seen in non-living objects पाखरे हमें ग्रोथ देखि परिबा ताले किंतु से ग्रोथ ताको हमें कहबा दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बट दैट ग्रोथ is extrinsic one अर्थात बाहर जमा हे ताको से बढ़ाई पारिबो सो ए भलिया ग्रोथ को हमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहूछु जेहेतु नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अनेबल टू माने शोइंग द ग्रोथ जेहेतु से शो करूची सेथि पई जे बढ़ुची हमें ताको ही लिविंग कहिबाटा ठीक हबने That's why हमें एठी लिखि परिबा growth is not a defining property defining character
of a living organism गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नुहे अर्थात जे ग्रोथ करूची बा जे ग्रोथ पई एलिजिबल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली हमें कहि परिबा नाही काहे कि सपोज गोटे स्तरीभूत शिला बा सेडिमेंटरी रॉक रखे इमेजिन करो एटा गोटे सेडिमेंटरी रॉक थिला समुद्र तळे ए वर्ष बन्या रे पटु माटी आसी एथि लागिला आर वर्ष बन्या रे पुणी पटु माटी एथि पड़िला तो ये पत्थरटा धीरे धीरे बढ़ुची ना नहीं सो हियर द सेडिमेंटरी रॉक इज ग्रोइंग ताल ताकू तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहबा कथा बिकॉज़ इट इज ग्रोइंग किंतु ता पाखरे अदर लाइफ एक्टिविटीज नहीं सो केवल जने ग्रोथ करिवो आ सेथरे हमें ताकू लिविंग ऑर्गेनिज्म कहबा इट इज नॉट पॉसिबल ताकू कहि परिबा नहीं ओके डोंट वरी सो टेक ए स्क्रीन सो ये देखो रिप्रोडक्शन माने रिप्रोडक्शन विषय में देखिबा निज भली एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म तैयारी करिबाटा होउची हमर रिप्रोडक्शन तो इति लिखि परिबा reproduction is the process of forming identical individuals by parents मान द्वारा आइडेंटिकल इंडिविजुअल अर्थात से पेरेंट भलिया देखा जिबा भलिया इंडिविजुअल तैयारी करबाकू आमे कहबा रिप्रोडक्शन however reproduction is of two types आमे जे देखिबा रिप्रोडक्शन दुई प्रकार रो हुए गोटेला asexual और आउटला sexual so organisms can reproduce either asexually or sexually asexually भी करि पारे आउ sexually भी करि पारे most of the lower organisms exhibit asexual reproduction it is of various types few of them are सेमानक भितर किछि जनक विषय रे वर्तमान हमें देखिबा हला सो spores are being produced by fungi all the fungal members fungi सेगुडा के समय क्लासिफिकेशन विषय रे डिटेल ले गला बेलको आउ डिटेल ले जानिबा हला budding 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 done by yeast and algae fragmentation गोटे को सब स्वतंत्र प्रोसेस गोटे संगे संगे से प्रोसेस विषय रे जानिबा भी चाहेबा स्पोर माने दे आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमें स्पोर्स को स्पेशल स्ट्रक्चर्स कहि परिबा फ्रैगमेंटेशन माने एक्सीडेंटली छिंडी जीवाडा algae fungi planaria these are the organisms showing such mode of reproduction here सेमती binary fission मु आपके आगुरु तो मन को कहउतली binary fission which is shown up by shown up by bacteria amoeba and many more methods are there किंतु आज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रो इंट्रोडक्शन चैप्टर ने तापय सेकंड ईयर रे सेपरेट गोटे चैप्टर होची
तेणु से डिटेल्स रे आमे वर्तमान जीवा दरकार। द एग्जांपल्स गुडा के तुमे देखिलो, स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स, बर्ड्स आर आल्सो structure which are growing from the body, fragmentation, body condition भांगी गला। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मान को केस रे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ताको देखिबा किछ माने हेले माने एटा देखा जाउची आ एथरे कोन अछि इट include formation of gamete formation, fusion of gametes, formation of zygote, अच्छा बर्तमान आमे देखिबा जे रिप्रोडक्शन दा कोन गुटे डेफिनेटिव कैरेक्टर ना एटी it includes formation of gametes, fusion of gametes, formation of zygote and their development to individual। तो एबे आमे नेक्स्ट देखिबा कोन जे जने जदि रिप्रोडक्शन करि पारुची ताहले जे ताको आमे जीवंत बोली कहिबा, नहले कहिबानी। आमे जदि देखिबा मेनी living organisms are unable to दक्षता रखी न थांती। फॉर एग्जांपल एटे एग्जांपल मु नउजी हनी बी और वर्कर्स इन हनी बी, वर्कर ऑफ हनी बी सेंदी हनी बी रो वर्कर जेमिति रहुजी से प्रकार जदि हमें देखिबा ह्यूमन मान को भितरे ट्रांसजेंडर रहंती। ट्रांसजेंडर भाषा खराब करबा कथा नु, दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन आइदर मेल और फीमेल दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ता माने हमको हमें कोन कहबा दे आर अनेबल टू लिव, तांको हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रे कोन नेबानी बाध्य नबा। तांको हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रो हमें बाहर करि परिबा नहीं। सेथि लगी ए जो जिनसटा ए कैरेक्टरटा कि हमें कहबा इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर और इट इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर कोन जोटा बाध्यतामूलक से लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली प्रमाण करूथाय। सो एठी लिखि परिबा रिप्रोडक्शन is not a defining character, it is not a defining character for living organism को ये बुझी परलो ना ग्रोथ हला डिफाइनिंग कैरेक्टर ना रिप्रोडक्शन हला डिफाइनिंग कैरेक्टर। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दुईटा को हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर हमें नहीं परिबा नाही। नेक्स्ट आसीबो हमरो मेटाबॉलिज्म। डू यू नो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल द केमिकल एक्टिविटीज और रिएक्शंस है ना, ऑल द केमिकल रिएक्शंस that are taking place in living organisms are called metabolism। हमें ताकू metabolism कहबा। It can be divided into two types. It can be divided into two types। दुई भाग रे हमें ताकू विभक्त करूछु। गोटे हला काटाबोलिज्म CATABOLISM आ गोटे होची एनाबोलिज्म ANABOLISM। काटाबोलिज्म रे कोन हुए, बड़ बड़ मॉलिक्यूल भांगी की छोटो मॉलिक्यूल रे परिणत हुए। दिस इज ए ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ब्रेकिंग दिस इज द बिल्डिंग अप प्रोसेस। इथरे छोटो छोटो मॉलिक्यूल रु बड़ बड़ मॉलिक्यूल सृष्टि हेबो। तो दिस इज कॉल्ड ए बिल्डिंग अप प्रोसेस। एटा को हमें बिल्डिंग अप प्रोसेस बोली करी कहबा।
तो वर्तमान ए सब जिंस जो देखिल मेटाबॉलिज्म माने बॉडी रे जतिकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म is divided let us have a differentiate between catabolism and anabolism catabolism and anabolism so first differentiate between I have told you earlier 3.5 marks category question আছে তো এটি দেখো first point catabolism is a breaking down process catabolism is a breaking down process आर पटे लिखी कौन तमें कह एनाबोलिज्म इज ए बिल्डिंग ऑफ प्रोसेस है ना इठी लिखिली complex molecules are broken down into smaller molecules बड़ बड़ मॉलिक्यूल दा भांगी की छोट छोट मॉलिक्यूल रे परिणत होबो एपटा स्मॉलर molecules are joined to form larger molecules बड़ बड़ molecule रे परिणत हेबो प्रोसेस टा टी अलगा सो एठी देखिबा पॉइंट नंबर 3 it releases energy एठी लिखिबा here energy is stored एठी एनर्जी स्टोर हुए नंबर 4 here potential energy is converted to kinetic energy potential energy is converted to kinetic energy converted to potential energy हमें बर्तमान देखिबा एग्जांपल रे एग्जांपल respiration is the example of catabolism एपटे photosynthesis is the example of photosynthesis. If photosynthesis is the example of anabolism, this much.